Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the kingdom Monera and today we are going to see the kingdom Protesta. So let us start with the content reading and the explanation of the topic. So students, the topic of the day is Kingdom Protesta. In the previous video we have discussed about Kingdom Monera. So you should be clear about that the bacteria are present in the kingdom Monera, whereas the protozoas which causes the diseases, they are present in Protista. So let us start with the content reading. The term Protista was coined by Ernst Haeckel. जो Protista जो term है ये सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट अर्नस्ट हेकल ने दिया था, वो भी कब 1886 में. This kingdom comprises unicellular organism called protist. The unicellular organism, that means they have well developed cell and the nucleus. Those organisms are called protist and such type of organism are kept in this kingdom Protista. They have well defined nucleus, I have already told. These unicellular organisms with well defined nucleus and a membrane bound organelles are called eukaryotes or eukaryotic cells. I have already described the eukaryotic and prokaryotic cells. So let us revise the topic eukaryote and prokaryote. There are two types of cells. One is unicellular, two types of organism, sorry. One is unicellular organism and second one is multicellular organism. The unicellular organism are divided into two types. They are prokaryotic and eukaryotic. So prokaryotic, as the term pro means primitive, जो pro और carrion दो वर्ड से prokaryotes बने होते हैं, जिसमें से pro का मतलब होता है primitive, जिसका मतलब well developed ना हो, और whereas carrion means होता है nucleus. तो eukaryotic में की कंडीशन में u means होता है true और carrion means nucleus. True means सही. तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है. न्यूक्लियर मटेरियल होता है, डीएनएज होते हैं, आरएनएज होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो सारे न्यूक्लियस में ना होकर के पूरे सेल में इधर उधर फैले हुए होते हैं. वहीं पर अगर यूकैरियोटिक सेल की हम बात करेंगे तो एक उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर, उसके अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Okay, so the kingdom Protista have eukaryotic organism, that means they are unicellular and eukaryotic, that means their nucleus is well defined, whereas in comparison to Protista the Monerans have prokaryotic structure, that means they are also single cell and their nucleus is not well defined, but in case of Monera their nucleus are well defined and they are eukaryotic. Okay, Protists are mostly found in aquatic habitats such as pond, lake, river and seas. जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर पॉन्ड, लेक, रिवर, सी या स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं. प्रोटिस्ट हैव थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया और फ्लैजिला. जो प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास इनके मूवमेंट के लिए कोई ना कोई डेफिनेट ऑर्गन होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में सिलिया होता है, थ्रेड लाइक, ये क्या होता है जैसे धागा होता है, कुछ उस तरह से दिखने वाले होते हैं, और ये सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला भी होता है. पैरामीशियम, यूग्लिना एंड अमीबा आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्ट. जो पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा के. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा. स्पेशली हम प्रोटिस्ट में अमीबा के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो हियर इज द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट. यू कैन सी फर्स्ट वन इज पैरामीशियम, सेकेंड वन इज यूग्लिना एंड द लास्ट इज अमीबा. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज पैरामीशियम. यू कैन सी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीपर एनिमल क्यूल. दिस ऑर्गेनिज्म, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसकी जो आउटर लेयर के बाहर ये जो पतली पतली आपको दिख रहे हैं, दिस इज नन अदर देन सिलिया. ये सिलिया ही है जो आपको दिख रहा है.
इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है दैट इज सिलिया। इसमें देखेंगे माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मैक्रो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ओरल ग्रूव, यहाँ से ये फूड को लेता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मैंने पहले ही बताया था कि जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, वेयर एज द सेकेंड डायग्राम इज यूग्लिना। यहाँ पे इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है ये सिलिया, वेयर एज यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्लैजिला। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वेब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, जैसे चाबुक होती है कुछ उस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का। ओके, तो ये है यूग्लिना। आप देख रहे हैं यूग्लिना का कलर ऑलमोस्ट ग्रीन है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूग्लिना की। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ग्रीन पिगमेंट भी होते हैं। जब तक ये सन रेज में होता है ये अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन अगर ये इसको डार्क में आप रख दीजिए तो ये आसपास की चीज़ों पर डिपेंड हो जाता है अपने फूड के लिए। सो दिस इज यूग्लिना। और ये जो लास्ट फिगर है ये है अमीबा का। इसमें ये न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जो इसके मूवमेंट के लिए और फूड को पकड़ने के लिए, फूड को ग्रास्प करने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। ओके, so this is the structure of some organism of kingdom protista. First we will discuss about the amoeba. Amoeba is a type of cell or organism which has the ability to alter its shape. amoeba एक ऐसा organism है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो अपने शेप को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग वे में चेंज करता रहता है। इट लिव्स इन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये कहाँ कहाँ होता है? फ्रेश वाटर में होता है, साल्टी वाटर में, एंड अलॉन्ग विद दैट मॉइस्ट सॉइल में भी होता है। स्ट्रक्चर, द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप। ये जो अमीबन्स हैं बहुत सारे शेप के होते हैं, क्योंकि इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जो भी शेप अगर ये अटेन कर ले वही उनका शेप कहा जाता है दैट पर्टिकुलर टाइम में। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर irregular shaped microorganism that consist of well defined nucleus. अमीबा ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल्ड है जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल एंड प्रोटेक्ट इट। सेल जो अमीबा होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो पूरे बॉडी पे फैली हुई होती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। It continuously changes its body shape forming pseudopodia. ये अपनी बॉडी को, अपने शेप को लगातार चेंज करता रहता है अपनी स्यूडोपोडिया के हेल्प से। ओके, स्यूडोपोडिया मैंने पहले बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसके मूवमेंट में और फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं। Pseudopodia are used for locomotion, nutrition and excretion. They are also responsible for the excretion. Okay, now the type of the nutrition in amoeba. Amoeba has a holozoic mode of nutrition. अमीबा क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। इट फीड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन द वाटर बॉडीज बाय इनगल्फिंग देम बाय द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अमीबा क्या करता है? अपने फूड को फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा लेता है। ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाता है जिनको हम आप देख भी नहीं सकते हैं। ओके, जो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है फूड लेने का वो कुछ इस तरह होता है। मान लीजिए अमीबा का कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे शेप था, इसको जरूरत है फिलहाल खाने की और इसने देखा कि यहाँ पे फूड जो है वो प्रेजेंट है, इसने सेंस कर लिया कि यहाँ पे फूड प्रेजेंट है। तो आपको पता है इसका शेप डिफरेंट तरीके से बनता रहता है, तो इसको अगर फूड लग गया, सेंस कर लिया इसने कि यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, तो ये अपने जो बॉडी के शेप को इसके अगल बगल ले आता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे ले आया, इस तरह से यहाँ ले आया, मतलब ये स्यूडोपोडिया को बढ़ाने लगा, स्यूडोपोडिया को बढ़ाने लगा। और फिर क्या करता है? स्यूडोपोडिया से अपने बॉडी से ये इसको घेर लेता है पूरी तरीके से। अब जब घेर लिया है तो अब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके घेरे में फंस गया है। अभी ये यहाँ पे फंस गया है, धीरे धीरे इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इसे आगे बढ़ने लगता है और एक टाइम आता है कि उसको अपने अंदर मिला लेता है, यानी कि निगल लेता है। तो इस तरह से होता है
क्योंकि इसका शेप, अमीबा का शेप बदलता रहता है, तो जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो अपने बॉडी में चेंजेस करने लगता है। ओके, When the food particle are present near of amoeba, जब food particle अमीबा के पास में होता है, it grows pseudopodia, temporary protrusion from the body. ये क्या करता है, उस फूड के आसपास pseudopodia को ग्रो कर लेता है, डेवलप कर लेता है और फूड पार्टिकल्स के डायरेक्शन में बॉडी को मूव करने लगता है एंड स्लोली इनगल्फ इट कम्प्लीटली। मैंने बताया कि उस पर्टिकुलर चीज़ जिसको खाना है उसके चारों तरफ अपनी बॉडी को फैला लेता है और उसको पूरी तरह से घेर लेता है और धीरे से उसको अपने अंदर ले लेता है। ओके, इट देन फॉर्म्स अ वैक्यूल वेयर द फूड पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। आपने देखा होगा ये जो आपका अमीबा है, इसके अंदर फूड वैक्यूल्स हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये जो और ये वैक्यूल और ये फूड वैक्यूल्स, ये क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर गया, ये वैक्यूल्स डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं और इन डाइजेस्टिव जूसेस के हेल्प से डाइजेशन की प्रोसेस अमीबा में स्टार्ट हो जाती है। द फूड वैक्यूल्स इज कॉल्ड फैगोसोम। जो फूड वैक्यूल्स होता है उसको फैगोसोम भी कहा जाता है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस से ही लिया गया है ये फूड। दिस प्रोसेस ऑफ engulfing सॉलिड फूड पार्टिकल विद द pseudopodia इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब जब pseudopodia के हेल्प से फूड को इनगल्फ किया जा रहा है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, आई हैव एक्सप्लेन द डायग्राम ऑल्सो। नाउ टू टेक इन द लिक्विड फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा डेवलप्स अ वेसिकल एंड टेक्स द लिक्विड इनसाइड। क्या होता है, अगर अमीबा को अपने फूड को लिक्विड के फॉर्म में लेना है तो उस कंडीशन में इनमें वेसिकल्स डेवलप होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, वो थैले, जिसको आप कह सकते हो थैले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसमें वो लिक्विड को अपने अंदर ले लेती हैं और बाद में जाकर के अंदर वो पूरे बॉडी में वैक्यूल्स के डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल अराउंड इट कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और जब वेसिकल्स के हेल्प से, यानी बैग यानी कि थैले के रूप में जब लिक्विड का इनगल्फ होता है, उस कंडीशन को कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। ओके, नाउ वी हैव द लोकोमोशन ऑफ अमीबा। अमीबा हैज अ स्पेशल फीचर वेयर इट डेवलप्स टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। होता क्या है, जब भी स्यूडोपोडिया का मूवमेंट होना होता है तो स्यूडोपोडिया का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कुछ ऐसा रैंडम जैसा होता है। मान लीजिए उसको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो ये करता क्या है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ऐसा है, इस डायरेक्शन में इसको मूव करना है, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी से इस साइड ऐसे स्यूडोपोडिया डेवलप करेगा। जैसे ही स्यूडोपोडिया डेवलप करेगा, फिर ये पूरी बॉडी इसके पास, इस स्यूडोपोडिया के पास आने लगेगी और ये धीरे धीरे स्यूडोपोडिया के डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ओके, अमीबा हैज अ स्पेशल फीचर वेयर इट डेवलप्स टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा के पास एक स्पेशल फीचर होता है स्यूडोपोडिया का, जिसके थ्रू वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और उसके डायरेक्शन में मूवमेंट करता चला जाता है। स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन कैप्चरिंग फूड। स्यूडोपोडिया उसको खाना कैप्चर करने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। द स्यूडोपोडिया हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। जो स्यूडोपोडिया है वो मूवमेंट में हेल्प करता है और जो साइटोप्लाज्म है, मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, उसके फ्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस डायरेक्शन में स्यूडोपोडिया ग्रो करता है उसी डायरेक्शन में सेल का साइटोप्लाज्म बह करके जाता है। मतलब वो फ्लूइड जैसा है तो बह के ही तो जाएगा। तो क्या होता है, जिस साइड स्यूडोपोडिया ग्रो करता है उस साइड ही जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बह करके उसी साइड जाता है और उसी डायरेक्शन में अमीबा मूव करता है। क्योंकि अगर जिस साइड स्यूडोपोडिया बना हुआ है उसी साइड सेल का फ्लूइड भी जा रहा है और मतलब कि सेल पूरा जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट भी होता है। फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्यूडोपोडिया गेट्स एक्सटेंडेड टुवर्ड द साइड ऑफ मूवमेंट। यस, जिस साइड स्यूडोपोडिया होता है
स्यूडोपोडिया ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, उसी साइड में मूवमेंट होता जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट, और इस तरह के मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में आप देखिए ये है अमीबा। इसने क्या किया, अपना जो स्यूडोपोडिया है उसको यहाँ बढ़ाया। जब स्यूडोपोडिया इधर बढ़ा तो सेल का कंटेंट भी इधर खिसकना शुरू करेगा। तो सेल का कंटेंट भी इधर देखिए खिसक रहा है, और यहाँ से ये अमीबा यहाँ तक मूव करके चला आया, ड्रैग होता हुआ। जिस तरह से आप माउस को टेबल पे और उस पे ड्रैग करते हैं, सेम उसी तरीके से ये मूव करता है। नाउ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अमीबा हैं इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। द वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर एक्सक्रीटेड आउट बाय डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसका वेस्ट है, अमोनिया उसका वेस्ट है, ये सब डिफ्यूजन के हेल्प से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। Contractile vacuole also plays an important role in the process of excretion. It expands if water is there and shrink after releasing water. Contractile vacuole क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा important role play करता है excretion के process में। ये क्या करता है, जब पानी ज़्यादा होता है contractile vacuoles में, तो ये फैला हुआ होता है, फूला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही पानी को बाहर वो डिफ्यूज कर दिया, उसके बाद ये श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। नाउ रिप्रोडक्शन। अमीबा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन 2 वेज। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मोड से होता है, जिसके 2 मेथड्स हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग। जो बाइनरी फिजन होता है इसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड होता है। बाई मीन्स होता है 2, फिजन मीन्स होता है टूटना, यानी कि जब 2 में टूटता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग साइटोप्लाज्म के पार्ट को ले करके अलग हो जाता है और 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो अमीबा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीबा है, ये अमीबा का न्यूक्लियस क्या किया, फैल करके 2 अलग अलग न्यूक्लियस में टूट गया। जब 2 अलग अलग न्यूक्लियस में टूट गया तो साइटोप्लाज्म यानी कि जो फ्लूइड था वो भी अपने न्यूक्लियस के साथ अलग अलग डेवलप करने लगता है, और जब थोड़े से वो डेवलप हो जाते हैं तो वो टूट के अलग अलग हो जाते हैं। ये डायग्राम बना करके इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना आपका असाइनमेंट वर्क है। तो ये था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में सबसे पहले न्यूक्लियस स्टार्ट करता है डिवाइड करना, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दोनों ही अपना साइटोप्लाज्म कंटेंट ले करके बाद में पूरा सेल डिवाइड हो जाते हैं। ओके, द साइटोप्लाज्म देन स्टार्ट डिवाइडिंग सराउंडिंग द डॉटर न्यूक्लियाई। यस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गए 2 पार्ट में, और फिर साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो करके पूरा सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अमीबा डेवलप्स अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। उस समय क्या करता है, अमीबा अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है जिसको सिस्ट कहा जाता है। रिप्रोडक्शन अकर्स इन द सिस्ट बाय मल्टीपल फिजन। करता क्या है अमीबा, हम बता देते हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पानी बरसात मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी वानी लेक पॉन्ड सब जगह का सूख गया है, उस कंडीशन में क्या करता है, ये अपने ऊपर एक रिजिड स्ट्रक्चर बना लेता है, खूब टाइट सा स्ट्रक्चर। और उस कंडीशन में क्या होता है, अमीबा का जो सेल है वो डिवाइड होकर के 2 में टूट जाता है, फिर 4 में टूट जाता है, ऐसे करके 5-6 सेल, 8 सेल, 10 सेल, ऐसे करके कई 2-3 महीने जब तक गर्मी रहती है तो यहाँ पे हो जाते हैं 100, 200, 400 सेल, और ऊपर से ये सिस्ट की वॉल होती है। जैसे ही बरसात होती है, बरसात में फेवरेबल कंडीशन पाने पर ये जो सिस्ट है ये ब्रेक कर जाती है, और अलग अलग अमीबा ये सारे जो हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। ऐसा होता है।
ऐसा होता है। तो ये था मल्टीपल फिजन। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस कंडीशन में अमीबा हार्ड आउटर कवरिंग बना लेता है जिसको सिस्ट कहा जाता है। रिप्रोडक्शन अकर्स इन द सिस्ट बाय मल्टीपल फिजन। जो उस कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिवीजन होते हैं, मतलब वो 100-150 में डिवाइड हो जाता है और सब अलग अलग करके साइटोप्लाज्म लेकर के अलग अलग सेल बन जाते हैं अमीबा के। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है सिस्ट की वॉल टूट जाती है और हर ऑर्गेनिज्म नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अमीबा से बहुत सारे अमीबास डेवलप किए, इसीलिए इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। मल्टीपल मीन्स कई सारे, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो ये था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, उसका रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, सब कुछ हमने देखा। और अगले क्लास में हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।